નમસ્તે વિદ્યાર્થી મિત્રો, ઓનલાઈન શિક્ષણમાં આપ સર્વનું હાર્દિક સ્વાગત છે. આજે આપણે ધોરણ 6 વિષય હિન્દી, જેમાં ચોથો પાઠ શીખી ગયા છીએ. એનું સ્વાધ્યાય આપણે છેલ્લે બાકી હતું. અભ્યાસનો આપણે છેલ્લે અભ્યાસ સુધી અભ્યાસ કર્યો હતો. હવે સ્વાધ્યાય તરફ જઈએ તો બધા જ વિદ્યાર્થી મિત્ર પોતાની પાઠ્યપુસ્તક ખોલે અને પેજ નંબર 20 ઉપર જે સ્વાધ્યાય તમને આપેલું છે તેમાં ધ્યાન આપે. તો સૌ પ્રથમ જોઈએ તો સ્વાધ્યાયનો પહેલો પ્રશ્ન આપણને આપેલો છે કે પ્રશ્ન કે ઉત્તર लिखिए. तो पहलो प्रश्न है कि पत्र कब और कहाँ से लिखा गया है. तो तेनो जवाब है पत्र 4 अगस्त 2011 को 195 सोमियानगर सोसाइटी मुंद्रा जिला कच्छ से लिखा गया है. बीजो प्रश्न है कि पत्र किसने किसको लिखा है. तो तेनो जवाब है कि पत्र पूजन ने मित्र मनोज को लिखा है. तीजो प्रश्न पत्र किस विषय के बारे में लिखा गया है. तो तेनो जवाब है कि पत्र पुस्तक के महत्व के बारे में लिखा गया है. હવે પ્રશ્ન નંબર 2 આપેલો છે કે अपने घर कोई पुराना या नया पत्र ढूंढिए और उसे देखकर निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर लिखिए. જેમાં પહેલો પ્રશ્ન આપણને આપેલો છે કે પત્ર કિસને लिखा है. तो તેનો જવાબ છે કે यह पत्र रोहित पटेल ने लिखा है. बीजो प्रश्न पत्र क्यों लिखा गया है. तो तेनो जवाब है कि पत्र स्वस्थ रहने के उपाय बताने के लिए लिखा गया है. तीजो प्रश्न है कि पत्र कौन से दिनांक को लिखा गया है. तो तेनो जवाब है कि पत्र 13 अगस्त 2008 को लिखा गया है. હવે પેજ નંબર 21 ઉપર તમને આપેલું છે કે પત્ર भेजने के लिए आम और पर पोस्ट कार्ड, अंतरदर्शनीय पत्र या लिफाफा इस्तेमाल किया जाता है. डाकघर जाकर इनका मूल्य पता कीजिए. यह भी पता कीजिए कि इतने में क्या अंतर होता है. તેના વિશે જાણવાનું છે કે પોસ્ટ કાર્ડ કોને કહેવાય, અંતરદર્શનીય પત્ર કોને કહેવાય અને લિફાફા કોને કહેવાય, જેના વિશેની માહિતી આપણે મેળવી લઈએ. તો સૌ પ્રથમ તમને આપેલું છે पोस्ट कार्ड. बराबर. હવે पोस्ट कार्ड कोने कहते हैं कि पोस्ट कार्ड एक खुला होता है. इसमें लिखने के लिए अधिक जगह नहीं होती है. इतना मूल्य 50 पैसा का तेनो ये 50 पैसानो पत्र મળે છે કે એમાં બહુ લાંબુ લખાણ આપણે કરી શકતા નથી पोस्ट કાર્ડમાં. બરાબર. ખુલ્લું इसमें लिखने के लिए बहु अधिक जगह है એટલે કે થોડી જગ્યા હોય છે. હવે અંતરદર્શનીય પત્ર કે જેમાં શું હોય છે. હવે અંતરદર્શનીય પત્રમાં જોઈએ તો કે इसे लिखने के बाद 3 ओर से मोड़कर बंद किया जाता है. जो 3 तरफથી આપણે બંધ કરી શકીએ, જેને કવર કહીએ છીએ. इसका उपयोग केवल अपने देश में ही हो सकता है. इतना इसका मूल्य 2.5 रुपये का है. 2.50 રૂપિયા કા હે એટલે કે 2.5 રૂપિયાની હોય છે કવરની કિંમત. જે આપણે પોસ્ટ કાર્ડ કંઈ ગમે તે કાગળ દાખલ કરવું હોય તો પોસ્ટ કાર્ડમાં મોકલીએ છીએ ને, તેને 3 બાજુથી વારી અને સરસ મજાનું કવર બનાવીએ છીએ, તેને અંતરદર્શનીય પત્ર કહેવામાં આવે છે. હવે लिफाफा કોને કહેવાય. તો કે અલગ કાગજ પર પત્ર लिखकर और उसे मोड़कर लिफाफा में रखा जाता है. जो एक જાતના કવરમાં રાખવામાં આવે છે ને તેને लिफाफा કહેવામાં આવે છે. इसमें पत्र सुरक्षित रहता है. તેમાં પત્ર સરસ રીતે રહી શકે છે. અને लिफाफा पत्र के अलावा प्रायः बहने अपने दूर रहने वाला भाइयों को राखी भेजते हैं. इसका मूल्य 5 रुपये का होता है. કે જે પોતાના ભાઈને મોકલવા માટે જે રાખડીને ગમે તે કુરિયર કરીએ છીએ તે આપણે પોસ્ટ કાર્ડમાં કરીએ છીએ, કવર હોય છે ને, તો તેને लिफाफा કહેવામાં આવે છે. તેની કિંમત કેટલી હોય છે? 5 રૂપિયાની હોય છે. જો બહુ અંતર હોતું નથી. પોસ્ટ કાર્ડ 50 પૈસામાં મળે છે, જ્યારે અંતરદર્શનીય પત્ર જે આપણને 2.5 રૂપિયામાં મળે છે અને આ लिफाफा જે આપણને 5 રૂપિયામાં મળે છે. હવે પ્રશ્ન નંબર 4 જોઈએ તો આપણને આપેલું છે કે अपने आप पास की किसी भी घटना का वर्णन करते हुए अपने मित्र को पत्र लिखिए. જો તમારા મિત્રને પત્ર લખવાનું કીધું છે, બરાબર, તમારી આજુબાજુમાં બનતી ઘટના વિશે, તો આપણે એ સરસ મજાનો પત્ર લખવાનો છે કે જૈસે કે નદી મેં બાઢ આના. જો
નદીમાં પૂર આવું કે છે ને એના વિશેનો તમારે પત્ર લખવાનો છે સરસ એવો. તો તમે લખી શકો છો પત્રમાં. સૌપ્રથમ તો તેનું સરનામું લખવાનું રહે છે, પછી લખાય કે સપ્રેમ નમસ્તે પ્રિય મિત્ર, જે હોય તે તમારું XYZ ગમે તે મિત્રનું નામ તમે લખી શકો છો. અને નીચે લખાય कि तुम्हारा पत्र मिला, तुम्हारी बहन की बीमारी के बाद जानकर दुख हुआ. जो बीमारी ने लगतो कीधो है कि नदी में बाढ़ आ, तो तुम्हारी बहन की बीमारी की बात जानकर दुख हुआ. उसे खाने पीने में सावधानी रखनी चाहिए. मुझे विश्वास है कि वह जल्दी ही अच्छी हो जाएगी. कल रात हमारे मोहल्ले में शॉर्ट सर्किट के कारण एक मकान में आग लग गई. शुरू में किसी को कुछ पता न चला. घर में लोग सोए हुए थे. अचानक धुआं उठने लगा और बदबू आने लगी तो लोग जाग गए. धुआं है. अचानक धुआं उठने लगा और बदबू आने लगी तो लोग जाग गए. कुछ ही देर में काफ़ी लोग वहाँ जमा हो गए. मैं भी वहाँ पहुँच गया. यह तो अच्छा हुआ कि फायर ब्रिगेड की गाड़ी जल्दी आ गई और कुछ ही देर में आग बुझा गई. मामूली नुकसान के सिवा कोई बड़ी हानि नहीं हुई. सचमुच ऐसी घटना बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण होती है. बाकी सब कुशल है. हमारे माता पिता को प्रणाम. तुम्हारा मित्र जे होय ते जेने लखो छो, जे लखता होय ते. बराबर. આવી રીતે આપણે પત્ર લખી શકીએ છીએ. હવે નીચે આપણને જો સરસ મજાનું ઇતના જાણીએ તેમાં पैसे वाले लोग आपेलू है. जो शू कीधु है कि जे तमने गुजराती में शब्दों के लिए हिंदी शब्द लिखिए. जो गुजराती में शब्द आपेला हो तो आपणे हिंदी लखवाना छे ने हिंदी शब्दों ने गुजराती में शू कहेवाय तेना विशेनी आपणे सरस मजाना एवा शब्द नीचे आपेला है. जो सौ प्रथम आप्युं छे काछीओ. काछिया ने शू कहेवाय तो कि कूजड़ा कहेवाय. शू कहेवाय? कूजड़ा कहेवाय छे. पछी घड़ियाળી तो कि घड़ीसाज. शू कहेवाय छे? घड़ीसाज. कापड़ियो जेने बजाज कहेवामां आवे छे. बुक बाइडिंग. जो बुक बाइडर एने जे एने शुं कहेवामां आवे छे तो कि जील्दजाज. शुं कहेवामां आवे छे? जील्दसाज. पछी संघाड़ियो एने खरादी कहेवामां आवे छे. खाटलो भरनार जेने खटबुना. शुं कहेवाय छे? खटबुना कहेवाय छे. तंबोड़ी जेने पानवाड़ो होय ने तेने तमोली कहेवाय. शुं कहेवाय? तमोली कहेवामां आवे छे. पंसारी जेने गांधी. गांधी कोने कहेवाय? जे बधुं करियाणुं राखता होय ने एने गांधी कहेवामां आवे छे. कंदोई कोने कहेवाय? हलवाई. जे के बधी ज कंदोई बधी ज मीठाई बनावता होय, जे जमण बनावता होय एने कंदोई कहेवामां आवे छे. पछी वेपारी जे सोदागर कहेवामां आवे छे. शुं कहेवामां आवे छे? वेपारीने सोदागर. तो आ शब्द तमने आपेला है 10 शब्द जे तमारे नोटबुक में सरस लखवाना है अने पाका करवाना है. आवती मंथली में कदाच पूछाई पण सके तो आ शब्द तमारे पाका करवाना है. जेना गुजराती शब्दनी सामे हिंदी शब्द आपेला है जे तमने याद होवा जोईए. तमने परीक्षा में पूछे कि घड़ियाळी ने शुं कहेवामां आवे छे तो तमने खबर होवी जोईए कि घड़ी साज कहेवामां आवे छे. बराबर. हवे आगळ जोईए तो पेज नंबर 22 पर पिनकोड नंबर के संदर्भ में अने चिट्ठी का संदेश जे तमारे खाली वाँची लेवानुं छे. हवे आगळ जोईए भाषा सज्जता में आपणने आपेलुं छे. जोवो शुं आप्युं छे? एक चित्र सरस मजानुं एवुं आप्युं छे. जो गार्डननुं मस्त मजाना एवा गार्डन में बैठा छे आपेलुं छे ने सरस मजानुं एवुं चित्र. हवे एमां नीचे आपणने आपेलुं छे जो यह एक उद्यान है. उद्यान एटले के बगीचो छे. बच्चे फूला फूल रहे हैं. जो बाळको सरस मजाना एवा हिंचका खाय झूला झूला झूल रहे हैं. बराबर. तो सरस मजाने एवा गार्डन में झूलो बांधेलो छे ने बाळको त्यां झूली रह्या छे. माली पौधों को पानी दे रहा है. जो अहींया माळी सरस मजाना एवा फूल छोड़ने पाणी पाय छे. जो तमे सरस मजानुं एवुं जोई शको छो. पाय छे ने पाणी. जो बाळको आ बाजू हिंचका खाई रह्या छे. खाई रह्या छे. हाँ. हवे आगळ जोईए तो तमने आपेलुं छे कि कुछ व्यक्ति आपस में बातचीत कर रहे हैं. जो अहींया तमे जोई शको छो जे बातचीत करी रह्या छे. अहींया जोवो छो ने. पछी आप्युं छे बच्ची दौड़ रही है. जो शुं? छोकरी जो અહીં નીચે આપ્યું છે દોડી રહી છે. જોયું? हाँ. અને નીચે આપ્યું છે કે इन वाक्यों में कहीं कुछ कार्य हो रहा है जो पद
किसी कार्य के करने या होने का बोध करवाइए वह क्रिया कहलाता है। जो જે ક્રિયા કરે છે, જે ક્રિયા ચાલુ બતાવે છે તેને આપણે ક્રિયા કહીએ છીએ। હવે लिखना, पढ़ना, चलना, दौड़ना, खाना, पीना, खेलना और देखना आदि शब्द क्रिया ए कहे છે। आप जो क्रियाएं करते हैं उनकी सूची बनाए। તમે જે ક્રિયાઓ કરી રહ્યા છો તેની આપણે યાદી બનાવવાની છે। સૂચિ એટલે યાદી બનાવવાની છે। તો સરસ મજાનો એવો પાઠ આપણે અહીંયા પૂરો કરીએ છીએ। તો આવતા વિડીયોમાં આપણે એનું એસએમમાંથી રિવિઝન કરીશું। જય હિન્દ, વંદે માતરમ।